اوکے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی میزبان انسا کیانی, اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں امرین پرویز جو کہ ناروے میں رہتی رہی ہیں اور اس کے بعد ابھی یو کے چلی گئی. انہوں نے اپنی پوری زندگی باہر گزاری اب تک کی. تو ان سے بات چیت کریں گے, ان سے پوچھیں گے اوورسیز پاکستانیز کے حوالے سے ان کو کس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور عمران خان کی گورنمنٹ, کیونکہ عمران خان نے گورنمنٹ میں آنے سے پہلے بہت سے دعوے کیے تھے کہ ان کے ساتھ اوورسیز پاکستانیز ہیں اور وہ آ کے پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں گے, اور اس طرح کے وعدے, اس بارے میں ان سے بات چیت کریں گے. تھینک یو سو مچ امرین, آپ نے ٹائم دیا. سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ یہ بتائیں, آپ خود اپنا انٹروڈکشن کرائیں کہ آپ کیا کرتی ہیں, آپ نے کیا پڑھا ہے اور آپ بائی پروفیشن کیا کرتی ہیں. سو آئی ایم این او پی ٹرینر. میں گروتھ مائنڈ سیٹ کوچ ہوں. میں سب سے پہلے تو یہ بولوں گی کہ میں نے کرمنالوجی میں کیا تھا, اور اس کے بعد مجھے یہ لگا کہ اٹس ناٹ فیلڈ فار می, کیونکہ آئی ایم اے پیپل پرسن. تو میرا یہ دل کرتا ہے کہ انسانوں کے ساتھ یو نو اٹس مور لائک کہ اسٹوری سنوں, ان کی ہیلپ کروں, کچھ اس طرح. تو پھر میرا سارا فیلڈ اب فوکس ہو گیا کوچنگ کے بارے میں, این او پی ٹریننگ کے بارے میں. اور ابھی میں پاکستان آئی ہوں, آئی ایم ریئلی کائنڈ آف ایکسائٹیڈ کہ ادھر میں پاکستان میں اویئرنیس کریٹ کروں اباؤٹ این او پی, کیونکہ ادھر ایسے ہے یعنی کہ یو نو این او پی کے بارے میں اتنا لوگوں کو نہیں پتہ, اتنا شعور نہیں رکھتے اس بارے میں. تو دیٹس مائی مشن کہ پاکستان میں این او پی کا وہ کروں. سب سے پہلے یہ مجھے بتائیں کہ آپ کو تو اتنا ٹائم ہو گیا باہر رہتے ہوئے, تو وہاں پہ رہتے ہوئے خاص طور پہ کیونکہ آپ پاکستان سے بیسکلی تو اوورسیز آپ کہلاتے ہیں, تو اوورسیز پاکستانیز کو وہاں پہ کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, سب سے زیادہ وہ کس چیز کو فیس کرتے ہیں؟ آئی تھنک جب ٹین ایج ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو آئیڈینٹی کرائسس ہو جاتے ہیں, کیونکہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں یا ہم نارویجن ہیں یا پھر ہم فرینچ ہیں یا برٹش ہیں. تو یو نو سم ٹائمس بندے کو بہت زیادہ کمپلیکس ایشوز ہو جاتے ہیں کہ وہ ایک قسم کا وہ ہو جاتے کہ نہیں ہم صرف نارویجن ہیں, ہم صرف ویسٹرن ہیں. لیکن آئی تھنک یو ہیو ٹو اوور کم دیٹ, کہ وہ جب ایک ہو جاتی ہے اس کے بعد یعنی کہ جب آپ لوگ ایڈلٹہڈ میں آتے ہیں تو پھر آپ اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ آپ یو نو یو آر مور پراؤڈ ٹو بی پاکستانی. وہ ایشوز صرف چائلڈہڈ میں ہوتے ہیں یا ٹین ایجر میں آپ کو زیادہ وہ چیزیں آپ فیس کرتے ہیں. اچھا, یہاں پہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی آپ اب تک پاکستان کتنی دفعہ آ چکی ہیں؟ آئی تھنک میں فرسٹ ٹائم پاکستان آئی تھی جب میں 12 ایئرس کی تھی. اس کے بعد آئی تھنک آئی ڈونٹ ریمبر ٹو بی آنیسٹ, آئی تھنک 7-8 دفعہ آ چکی ہوں. اچھا, تو وہاں سے پاکستان آ کے آپ کو کیا فیلنگز ہوتی ہیں؟ آپ کی اپنائیت کا احساس ہوتا ہے یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ یہ کیا مطلب گند ہے یا ٹریفک ہے, اس طرح کے ایشوز ہیں کیا؟ میں جب فرسٹ ٹائم آئی تھی تو آئی واز لائک او مائی گاڈ ادھر تو مکھیاں یو نو, تو میں بہت ایسے ہو رہی تھی. لیکن اس کے بعد آئی تھنک آئی جسٹ لو پاکستان. جیسے ہی جہاز اترتا میرا دل کرتا اس مٹی کو چومو. آنیسٹلی آئی ریئلی وانٹ ٹو, اینڈ آئی تھنک آئی ڈیڈ دیٹ وانس. یہ نہیں میں نے بس اپنے ہاتھ کو زمین پہ لگایا اور میں نے ایسے چوما یو نو, کیونکہ یہ اپنی مٹی کی خوشبو کا ایک الگ ہی خوشبو ہوتی ہے. اور جب بھی میں ملٹری کو دیکھتی ہوں, پاک آرمی کو, آئی آلویز ڈو دیٹ, کیونکہ آئی جسٹ فیل یو نو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. آئی ایم جسٹ یو نو پیشنیٹ اباؤٹ کہ یو نو اس ملک کو کیسے اٹھایا جائے, اس ملک کو کیسے لفٹ اپ کیا جائے. سو آپ نے میرے خیال میں جو زیادہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان میں یہ جذبہ ہے, خاص کر عمران خان کی گورنمنٹ کے ساتھ. ہم سب وی آر سو پراؤڈ کہ ہمیں ایک ایسے پرائم منسٹر ملے ہیں جو ہمیں ریپرزینٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ جو پہلے پریزیڈنٹ تھے وہ یعنی کہ یو فیلٹ اے بٹ امبیرسڈ ٹو بی آنیسٹ, کہ اگر وہ جا رہے ہیں ان کو انگلش نہیں آ رہی اینڈ یو آر لائک او مائی گاڈ یعنی یو نو. بٹ عمران خان از لائک یو نو ہی از انوائٹڈ ٹو دا یونیورسٹیز, ادھر جا کے وہ اسپیچ دے رہے ہیں. یو نو ریسنٹلی ان کا جو ٹرمپ کے ساتھ بالکل انگیجمنٹ ہوا تھا, ہی ڈنٹ نیڈ ٹو ریڈ اینی تھنگ, وہ صرف ڈائریکٹ بات کر رہے تھے. اینڈ آئی تھنک ان کی وجہ سے بھی جو اوورسیز پاکستانی ان کی آئیڈینٹی بہت پراؤڈ ہوئی ہے کہ یو نو وی آر پراؤڈ آف بینگ پاکستانی. بالکل. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کبھی پاکستان میں ووٹ کاسٹ کیا ہے؟ نہیں. اچھا, اوورسیز پاکستانیز کا ایک کیونکہ ووٹ کا سسٹم ہوتا ہے پراپر, تو آپ نے ویسے دیکھا جائے تو اوورسیز پاکستانیز کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے, مطلب ہزاروں لاکھوں میں آتے ہیں. لیکن جب ووٹ کی بات آتی ہے یا ووٹ رجسٹریشن کی بات آتی ہے تو بہت کم اوورسیز پاکستانیز اپنے ووٹ کو رجسٹر کراتے ہیں اور ووٹ کرتے ہیں. حالانکہ عمران خان کی یہ بھی ایک وہ تھا کہ مجھے اوورسیز ووٹ جو ہے نا بہت زیادہ ملیں گے, لیکن اس طرح سے رجسٹریشنز نہیں ہوئی اور ووٹنگ نہیں ہو سکی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ نے اب تک کبھی ووٹ نہیں دیا, پاکستان میں ووٹ کاسٹ نہیں کیا, اس کا کیا ریزن ہے؟ حالانکہ اوورسیز آپ کے علاوہ بہت زیادہ ان کی تعداد ہے, لیکن ووٹ اس طرح سے کاسٹ نہیں کرتے. اپنا مطلب ایک جو ہے نا وہ ٹائم ہوتا ہے آپ کے پاس کہ جب آپ اپنے لیے اپنے ملک کے لیے کوئی ایک اچھا جو ہے نا بندہ لیڈر الیکٹ کر سکتے ہو, لیکن اس میں بھی اگر آپ ووٹ نہیں دیتے اس کے کیا ریزنز لگتے ہیں آپ کو؟ آئی تھنک دا فرسٹ ریزن از کہ اویئرنیس نہیں ہے, اتنی اویئرنیس نہیں ہے. مجھے نہیں پتا کہ میں ادھر ووٹ
दे सकती हूँ, कि कैसे वोट दे सकती हूँ. और आई थिंक इसके बारे में ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए कि जो जितने भी ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी एम्बेसीज़ हैं आप उनको कॉन्टैक्ट करें. एम्बेसीज़ का काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कि अब यूके में इलेक्शंस होते हैं, नॉर्वे में इलेक्शंस होते हैं, जितने भी जो पार्टीज़ हैं वो सारे जो उनकी जो सोसाइटी उसको एंगेज करते हैं कि वो आके वोट दें. लेकिन जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, हम लोग न्यूज़ तो सुनते हैं लेकिन जो हमारे जो मुल्क में एम्बेसडर्स होते हैं, जो एम्बेसीज होती हैं, उनकी तरफ से इतना वो अवेयरनेस क्रिएट नहीं होता कि उन्हें चाहिए कि ज़्यादातर आजकल तो सोशल मीडिया में सब कुछ है कि सोशल मीडिया के ज़रिए आप लोग ज़्यादा अपनी कम्युनिटीज़ को एंगेज करें कि वो आके वोट दें. तो आई थिंक उनको ज़्यादा इस चीज़ पे वो करना चाहिए. एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप जब वहाँ पे रहते हैं तो एक यहाँ के जो पाकिस्तानी ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल है उनका एक बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है कि हम बाहर जाना चाहते हैं, ख़ास तौर पे यूरोपियन कंट्रीज़ में जाने के लिए वो अपनी ज़मीनें बिचवा देते हैं, अपने माओं के जेवर बेच के, और वो चाहते हैं कि किसी भी तरह बाहर चले जाएं. उनको वहाँ पे ऐसा क्या दिखता है, या आप मुझे बताएं क्योंकि आप वहाँ पे रहती हैं तो आपको क्या ऐसी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं या क्या ड्रॉबैक्स हैं, आप वहाँ के बारे में ज़्यादा बता सकती हैं, ख़ास तौर पर उन नौजवानों को जो कि अभी ये देख रहे होंगे बाहर जाने की जो है ना कोशिशें कर रहे होते हैं हर टाइम के किसी भी तरह बाहर चले जाएँ. तो आप वहाँ के बारे में थोड़ा बताएँ. आई विल से कि जहाँ तक मेरा ओपिनियन है कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग कि आपने बाहर जाना, आप इस मुल्क पे फोकस करें कि आप इस मुल्क को कैसे बिल्डअप कर सकते हैं ताकि बाहर के लोग बोलें कि हमने पाकिस्तान आकर कुछ करना है. आई रियली वांट टू मूव टू पाकिस्तान और मैं इधर आकर कुछ करना चाह रही हूँ. लेकिन मैंने देखा कि जो इधर के नौजवान हैं, जैसे आप बता रही हैं उनसा, कि उनको ज़्यादा वो होता है कि बाहर जाकर करना है. मैंने आई विल टेल यू वन थिंग, वो ये है कि आप बाहर जाएंगे भी तो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो आपको, स्पेशली दोस्त हु आर बोर्न एंड रेज्ड अप देयर, वो आपको एक वो फ्रेश ही बोलेंगे. आई नो इस कि अच्छी बात नहीं है, लेकिन आप बेशक इधर आपने एमए किया हुआ है, जो कुछ मर्जी किया है, पर आप उनकी नज़र में फ्रेशिज जाएंगे. तो आई थिंक कि उधर जाकर आपको भी ये एक किस्म का लो कॉन्फिडेंस हो जाए कि ओ माय गॉड मैंने तो एमए किया हुआ, मेरी तो इतनी अच्छी डिग्री है, मेरी इतनी अच्छी फैमिली बैकग्राउंड है, इधर मैं आ गया हूँ या आ गई हूँ और इधर मुझे ये सही तरीके से बोल भी नहीं रहे. सो आई थिंक बिल्ड अप योर आइडेंटिटी एज अ प्योर पाकिस्तानी हियर. और आई थिंक इस बारे में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको भी कहना चाहिए कि थोड़ा सा अपने आप को ना ज़रा नीचे ज़मीन पे लेकर आए, क्योंकि समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि नहीं हम तो वी आर बोर्न एंड रेज्ड अप हियर, और पाकिस्तान के जो हैं उनको नहीं पता, वो सिर्फ वीज़े के लालच में होंगे, इवन दो अगर उनका फैमिली बैकग्राउंड भी कितना अच्छा क्यों ना हो. लेकिन जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो आपको यही सोचेंगे कि अगर एक नौजवान लड़का या लड़की बाहर के मुल्क में आ रहे हैं तो वीज़े के लालच में कुछ ना कुछ यानी कि करने के लिए आ रहे हैं. अच्छा, एक और चीज़, इमरान खान ने क्योंकि गवर्नमेंट में आने से पहले कहा था कि मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म दूंगा या पाकिस्तान में मतलब इतना अच्छा वो होगा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ यहाँ पे आके इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन अब तक ऐसा कुछ नहीं देखने में आ रहा. तो आप अगर आपकी बात की जाए तो आपको इमरान खान में कोई होप नज़र आती है पाकिस्तान के लिए, ख़ास तौर पे कि पाकिस्तान को अगर एक इमरान खान जैसा लीडर मिला है जिन्होंने बहुत से दावे भी किए थे, तो आप क्या चेंज देखिए, क्योंकि पहली दफ़ा वो प्राइम मिनिस्टर बने, तो आपको कोई चेंज नज़र आ रहा है या आपको लग रहा है कि कोई बेहतरी होगी या कुछ ऐसा? आई थिंक जो चेंज, सबसे बड़ा चेंज हम लोग जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उसमें ये है कि हम लोगों को ये प्राउडनेस आई है कि यू आर प्राउड ऑफ बीइंग पाकिस्तानी एंड यू रियली वांट टू इन्वेस्ट इन दिस कंट्री, कि आपको ये अपनायत वो यानी कि वो ज़्यादा महसूस हो रही है. और आप वाकई इवन दो अगर उन्होंने कोई प्रोग्राम नहीं बनाया अभी तक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए कि वो इधर आके इन्वेस्ट करें, लेकिन हमारा ये ज़्यादा यानी कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है हम लोग ये कह रहे हैं कि खुद कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान में आके किस तरीके से इन्वेस्ट करें. हम इधर आके, जैसे कि मैं इधर पाकिस्तान आई हूँ और मैं आई एम लाइक आई वांट टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट NLP, मैं NLP के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करूँ, जितने भी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करूँ कि जो एज अ नेशन, एज अ पाकिस्तानी नेशन हम अपने आप को मोर कॉन्फिडेंस कैसे करें. जैसे अब क्रिकेट का देख लें, जैसे ही हमारी टीम क्रिकेट में जाती है इंडिया के साथ खास तौर पर, और आप देखते हैं कि उनका जो कॉन्फिडेंस होता है वो बिल्कुल लो हो जाता है. एंड यू आर सिटिंग देयर एंड यू लाइक जस्ट कि अपने आप को be confident, be proud of who you are and you can beat anyone. Honestly, you can beat anyone. अगर हम अपने आप के ये अवेयरनेस क्रिएट करें कि हमारे पास अल्लाह ने वो कुव्वत दी है कि हम जो कुछ करना चाहें हम हासिल कर सकते हैं इस दुनिया में, क्योंकि अल्लाह ताला से कि वी आर अशरफुल मखलूकात. बिल्कुल. और NLP के साथ यही होता है कि आप लोग आप योर ब्रेन इज़ सो पावरफुल कि अगर आप किसी तरीके से भी उसको इस्तेमाल करना चाहें आपको कुछ भी हासिल कर सकते हैं इस दुनिया में. अच्छा, एक ये बात मुझे बताएं कि आप इमरान खान की गवर्नमेंट क्योंकि पहली दफ़ा आई है, तो आप आई थिंक उनकी गवर्नमेंट में पहली दफ़ा पाकिस्तान आई हैं जी, तो आपको कोई डिफरेंस फील हुआ है?
मुझे तो यानी कि एयरपोर्ट पे डिफरेंस फील हुआ था जैसे उतरी थी देयर वर नो वन हु वर सेइंग कि मुझे पैसे दो तो मैं आपके लिए ये करता हूँ यू वर लाइक ओ माय गॉड लग ही नहीं रहा है कि आप पाकिस्तान आए हैं तो आई थिंक जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके लिए एक तो ये कि ये फर्स्ट ईयर है राइट हमें 4 years और देने चाहिए क्योंकि बिल्कुल ही नया है और आई थिंक वो स्ट्रगल करेंगे क्योंकि इतने ज़्यादा चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं और आगे भी जाके करेंगे इट्स अबाउट कि वो एक नया रेवोल्यूशन लेकर आए हैं नया पाकिस्तान का एंड आई टोटली बिलीव इन हिम एंड आई नो दैट ही कैन डू इट ऑनेस्टली मैं तो पिछली दफ़ा भी इलेक्शन हुआ था आई वाज क्राइंग कि इमरान खान क्यों नहीं बने प्राइम मिनिस्टर एंड आई थिंक यू नो एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर उन्होंने अभी तक बहुत अच्छा काम किया है कि वो चाइना भी गए हैं टर्की में भी गए हैं और उन्होंने यानी कि आई थिंक टर्की गए नहीं टर्की नहीं गए चाइना गए चाइना गए हैं और उधर भी उन्होंने यूनिवर्सिटी में जाके स्पीच दी थी और अमेरिका गए यूएसए में आपने खुद देखा कि कितनी तादाद एक और बात मुझे बताएं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के क्योंकि वो वहीं पे रहते हैं तो कश्मीरीज़ के साथ उनकी एक किस तरह की बॉन्डिंग है और ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो बाहर के ममालिक में वो लोग तो अपने जानवरों का भी ख्याल रखते हैं उनके राइट्स का भी ख्याल रखा जाता है लेकिन कश्मीर में ह्यूमंस के साथ क्या हो रहा है तो उसके लिए आप लोग क्या फीलिंग्स हैं और आप लोग क्यों नहीं कोई आवाज़ उठाते या कुछ ऐसा क्यों नहीं करते आई थिंक ओवरसीज़ पाकिस्तानी जितना भी जब 14 अगस्त का जो हुआ था हमारा जो इंडिपेंडेंस डे थी सब ने इसी तरह मनाई थी कि उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन किया था हर जगह और 15th of अगस्त भी जाके जैसे नॉर्वे में अभी एक दोबारा से डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं और आई थिंक पूरे यूरोप में एक ये नया आया डेमोन्स्ट्रेशन करने का सिलसिला कि आप कर रहे हैं और आवाज़ उठा रहे हैं कश्मीर के लिए एंड और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इमरान खान ने उन्होंने जाके उधर ये आवाज़ उठाई है पहले आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर ने काम नहीं किया कि उधर जाके कश्मीर के हवाले से बात करें उन्होंने बात की है और ये सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक कि सब अवेयरनेस क्रिएट हुई है इवन दो कि इंडिया में जो कुछ हो रहा है बहुत गलत हो रहा है और आई थिंक वो अपना पूरी दुनिया में लोग देख रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं अच्छा एक मुझे बताएं अगर पहले वाली गवर्नमेंट के टाइम में जो पहले जितनी भी हुकूमतें गुजरी उस टाइम में अगर आपको ऑप्शन दिया जाता और अभी अगर आपको ऑप्शन दिया जाता कि आप पाकिस्तान में आके रहें इन्वेस्टमेंट करें तो आप पहले वाली गवर्नमेंट को प्रेफर करती है अब मैं अब की गवर्नमेंट को प्रेफर करती हूँ उसका क्या रीज़न है उसका रीज़न ये है इमरान खान बस इमरान खान नहीं इमरान खान आई थिंक इट्स आल्सो क्योंकि उन्होंने एक विजन दिया ना उन्होंने एक विजन दिया है नया पाकिस्तान का एंड यू फील के और स्पेशली उन्होंने बोला था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी कि वो भी यानी कि पाकिस्तानी हैं और फर्स्ट टाइम किसी ने अप्रोच किया था कि आई फेल्ट कि समवन इज टॉकिंग टू मी तो आई थिंक बिकॉज ऑफ हिम overseas Pakistani are more proud of being Pakistanis and because of him I think we really want to invest in this beautiful country क्योंकि हमारी country है and you feel that you know proudness of being Pakistani कि हमारी country हम इस मुल्क में आकर कुछ करना चाह रहे हैं तो yeah obviously like no मैं इस हुकूमत के साथ इन्वेस्ट करना चाहूँगी क्योंकि एज अ विजन कि एक नया पाकिस्तान है आई वांट टू हैव दैट विजन टू कि मैं इस विजन को बिल्ड अप करूँ यानी कि कुछ करूँ थैंक यू सो मच अमरीन आपने टाइम दिया जी नाजरीन जैसा कि आपने देखा अमरीन ने आप हमसे जो है ना सारी बातें शेयर की कि वो तमाम नौजवान जो कि बाहर जाके और किसी भी तरह से बाहर जाके अगर उन्हें लग रहा है कि वो सेटल हो सकेंगे तो बाहर उनको किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है उसके अलावा साथ ही साथ अमरीन ने यह भी बताया कि मुझे जो सुन के खुशी हुई कि अगर उनको मौका मिले तो पाकिस्तान में इस गवर्नमेंट में आके ज़रूर इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगी इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त अल्लाह हाफ़िज़।